अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। एक माह के दौरान फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में दो ख्वाजा सरा बेदर्दी से कत्ल। थाना सदर फैसलाबाद की पुलिस ने लगाया ख्वाजा सरा के अंधे कत्ल का सुराग। पुलिस ने मुलजिमान का सुराग कैसे लगाया और कातिल कौन थे, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम। फैसलाबाद में ख्वाजा सरा यानी ट्रांसजेंडर्स गैर महफूज हैं और एक माह के अंदर दो ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पे इन्हें बेदर्दी से कत्ल किया गया। फैसलाबाद के थाना सदर की हदूद में भी मोहम्मद इमरान उर्फ अंजलि नाम के ख्वाजा सरा को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद हैं। उस तो बाद जनाब जी कड़े ना मोबाइल झगड़ा हुआ जनाब इन्हें कड़ा ना इन्हें मार दिता। मैनू ये दसो कि मोहम्मद इमरान जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन नहीं है जी वालदा है कि वाला साहब की फौत हो गया और ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ? हाँ जी ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਜ਼ਰਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? जी ये शामी निकला जी 6 बजे तकरीबन 5-6 बजे घरों चले गया सी। ठीक है, उस तो बाद फिर इनकी कॉल आई सी जे इतने फलानी जगह ते जाओ जी आप ना भी कोई बहना उठना। ठीक है, वो तो सर जी सानू अल्लाह सानू इन्हें को चले गए, इन्हें कदे राती कोई 8-9 का टाइम से इन्हें जना मार दिता। मोबाइल खोंदा सी, ये मोबाइल दिंदा नहीं सी, इन्हें जना मार दिता। ये शाम ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾइम मिली? सानू सर जी मिली सुबह 9 बजे तो बाद। मतलब रात सारी गुजर गई है और अगला दिन चढ़ गया है। अगले दिन सुबह 9 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ? जी जी ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਥੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? हाँ जी पहले पुलिस होते पहले ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਉਰਫ ਅੰਜਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ, ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं जी सर सानू नहीं की इमरान ने। हाँ इमरान ने की, बाकी भी पुलिस उत्ते पहुँच गई सी, पुलिस ने साडा साथ दिता। ठीक है, तो बकायदा कड़ा से अगले ये मुजरम साडा यही है, मन भी गया जी, उन्हें मोबाइल भी सबूत हो गया। ठीक है जी, इन्हें मारिया। ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ख्वाजा सरा ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਾ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਇਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਦੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ? ये सर जी पहले बिल्कुल ठीक सी, काम करता सी, इन बाद शौक मिले ये जैसे बतेरा ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਦੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਨੂਨ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? हाँ जी बाद जी जनाब बाद इन्हें शौक पिया, शुरू तो नहीं सी, इन बाद तकरीबन हो गए ना कोई 2-4 साल हो गए, इन्हें शौक पिया सी, पहले नहीं सी। ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ? हाँ बिल्कुल ठीक सी। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ये पहले बस जी मेहनत मजदूरी कर लेंदा, जैसे बथेरा कहें कोई दर्जन वालवल सिख ला, जे कोई तेन करियाने की दुकान बना देंगे जी, कोई सिलसिला कोई कर ला भी ये काम छड़ दे, तो वो कहते नहीं मैंने शौक सी इस काम का। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? नहीं जी माँ बाप नहीं। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? नहीं जी पता नहीं लगा इनका, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? नहीं पता लगा सी। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ?
ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਜਾਣਾ 10-10 20 ਰੁਪਏ ਲਾਣੇ ਹਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में मोहम्मद इमरान उर्फ अंजलि नामी ख्वाजा असरा को एक उसका बना हुआ दोस्त, जो गुज़श्ता 1-1.5 साल से उसका दोस्त है, वो बुलाता है। शाम 6 बजे मोहम्मद इमरान खाली प्लॉट में ईंटों का एक ढेर है, उसके पीछे एक ख्वाजा असरा की लाश पड़ी हुई है। घर वाले जल्दी में हड़बड़ाहट में वहाँ से भागते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस, जिसे शायद किसी और ने कॉल कर दी थी या 15 की कॉल थी या लाश की मौजूदगी की खबर सुन के पुलिस वहाँ पहले मौजूद थी, उसकी पुलिस की मौजूदगी में जो लवाहिकीन हैं, जो मुद्दई मुकदमा है, वो लाश को शनाख्त करते हैं और फिर उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि ये हमारा ही मोहम्मद इमरान उर्फ अंजलि है, जिसे रात उसके अपने दोस्त ने जो है वो गला घोंट कर उसके गले में दुपट्टा डालकर जो है वो कत्ल कर दिया है। मुद्दई मुकदमा इस बात पे मुसर हैं और वो ये तवक्को रखते हैं कि कानून के मुताबिक कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। फैसलाबाद में थाना सदर की हदूद में एक ख्वाजा असरा की लाश मिलती है। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचती है। कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे पता चलता है कि मोहम्मद इमरान उर्फ अंजलि नामी ख्वाजा असरा का ताल्लुक़ कहाँ से है, किसने इसको कत्ल किया। इब्तदाई तौर पर ये एक अंधे कत्ल की वारदात होती है, जिसे पुलिस अपनी मेहनत और पेशा वाराना तरबियत को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ ट्रेस करती है बल्कि मुलजिम को गिरफ्तार भी करती है। मेरे साथ इस वक्त फैसलाबाद थाना सदर के SHO सब इंस्पेक्टर अली इकराम गुराया मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो एक ब्लाइंड मर्डर स्टोरी है, क्या इसके मुहर्रिकात क्या थे, कैसे पुलिस को पता चलता है कि यहाँ फ़लाँ जगह पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, और उस डेड बॉडी को फिर जो रिकॉग्नाइज़ करने का मरहला है, पुलिस ये सब कैसे करती है? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, ये 25 दिसंबर की तकरीबन 9 बजे का टाइम था। उस दिन क्रिसमस डे था, आपको पता है। तमाम लोग जो है ना, ऑलमोस्ट सारी नफरी जो है ना, वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद थी। बड़ा अहम दिन होता है उस दिन। उस दौरान हमें एक अननोन कॉलर जो है ना, राहगीर था, उसने 15 रेस्क्यू 15 पे कॉल की कि रेबे जो हमारा एक गांव है, वहाँ पे एक डेड बॉडी जो है ना मिली है, जिसको मैंने और DSP साहब ने और हमारे SP साहब ने जो है ना रिस्पॉन्ड किया। हम लोग वहाँ मौके पे गए तो वहाँ पे 31 से 32 साल उम्र का एक ट्रांसजेंडर की वो डेड बॉडी थी। बेसिकली कपड़ों से हमने जो है ना उनको आइडेंटिफाई किया कि ट्रांसजेंडर की डेड बॉडी है। तो इब्तदाई तौर पे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज उसमें कोई ऐसा ID कार्ड हमें नहीं मिला या कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करते, तो इब्तदाई तौर पे तो वो नामालूम ही था। उसी दौरान जो है ना फिर कुछ आधा पौना घंटा जब गुज़रता है तो इमरान की वालदा और उसके मामू जो है ना वो मौके पे पहुंचते हैं और उन्होंने बताया कि हमारा जो बच्चा है ना वो कल से जो है ना गायब है, हम लोग ढूंढ रहे हैं। पुलिस को उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट नहीं की थी उसकी गुमशुदगी, लेकिन वो मौके पे आके उन्होंने जब डेड बॉडी देखी तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो हमारा बेटा है। तो उससे इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसका नाम वगैरह जो है ना और इसकी दूसरी डिटेल्स जो है ना हमें पता चली। चलिए भाई, ये बताइएगा कि जब एक डेड बॉडी मिल गई है, पुलिस पहुंच गई और आइडेंटिफाई भी हो गया कि ये मकतूल जो है ये फ़लाँ है, उसके बाद पुलिस जो है इस प्रोसेस को कैसे चलाती है, कैसे पता चलता है कि इस को कहाँ, क्योंकि घर वालों को भी नहीं पता कि हमारा बच्चा कहाँ गया था, कहाँ पे जाके ये मिसिंग हुआ, किसके पास गया, किसने इसे कत्ल किया, तो कैसे फिर ये जो पुलिस का सिस्टम है आगे कैसे चलता है? असल में ये जो है ना, एक तो मर्डर वैसे ही बड़ा हीनियस क्राइम है, किसी भी किस्म का मर्डर, लेकिन चूंकि ये एक जेंडर बेस्ड क्राइम था, जेंडर बेस्ड मर्डर था, एक ट्रांसजेंडर की इसमें डेथ हुई थी और ऑब्वियसली उस चीज़ को बहुत सीरियस लिया जाता है। और ये इसमें जो है ना फौरी तौर पे जो है ना हमारे सीनियर अफसरान IG साहब तक और RPO साहब, CPO साहब, सब ने इस चीज़ का फौरी तौर पे नोटिस लिया और हमारे लिए ये एक चैलेंज था। बेसिकली जो है ना ब्लाइंड मर्डर था और हमने उसमें जो
बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से मूव कराना, पोस्टमार्टम करवाना और एविडेंस इकट्ठे करना, वो चीज़ें तो सारी हमने वहाँ से जो है ना कलेक्ट कर ली। लेकिन असल काम जो है ना उसके बाद शुरू होता है, हमने उसके कातिल को तलाश करना था। अच्छा अली भाई बताइएगा कि इसको कत्ल कैसे किया गया था? क्या किसी तेज़ धार आले से या इसको जो है वो गला दबा के या जहर दे के किस तरीके से इसको कत्ल किया गया? जी, इमरान उर्फ अंजलि को उसी का जो चादर थी, शॉल जो उसने ली हुई थी, उसी के ज़रिए जो है ना उसको गला दबा के जो है ना मर्डर किया गया था। तो उसमें फिर ये एक चैलेंज था हमारे लिए। इन सारी चीज़ों के बाद एफआईआर जो है ना फ़ौरी तौर पे जो है ना वो हमने लॉन्च कर दी उनकी एप्लीकेशन में। उसके बाद फिर जो है ना स्टेप बाय स्टेप हमने इसकी ट्रेसिंग जो है ना वो स्टार्ट की। और उसमें एक चीज़ जो है ना सबसे अहम हमें सेम डे पे जो एक नोटेबल चीज़ थी वो ये थी कि हमें उसका मोबाइल नहीं मिला, और उसके घर वालों से रब्ता किया और उसके दोस्तों से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास उसका मोबाइल नहीं है, और डेड बॉडी के पास उसका मोबाइल नहीं मिला। तो उस पे ऊपर जो है ना फिर हमने फ़ौरी तौर पे जो है ना टीम एक सीपीओ साहब ने जो है ना वो डिप्यूट कर दी थी, एसपी साहब और डीएसपी साहब की जो है ना वो हमें लीड कर रहे थे। हमने उसमें जो है ना उसके मोबाइल की तलाश शुरू कर दी। उसके मोबाइल की तलाश में हमने जो डाटा सारा इकट्ठा किया और सारी जो है ना उसकी एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी सारी जो है ना वो उसका डाटा लेके उसको हमने एनालिसिस किया। इसमें तकरीबन कोई हमने 100 के करीब सीडीआर्स जो है ना उसमें एनालिसिस किए, इसकी मूवमेंट वगैरह सारा कुछ। तो उस पे जो है ना हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया। अली भाई ये जो जदीद टेक्नोलॉजी को जब हम बरूए कार लाते हैं, पुलिस इस ज़िम्न में जब काम करती है तो कितना अरसा दरकार होता है? क्योंकि एक शख्स है, उसकी डिवाइस गैजेट भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ उसका जो डाटा है उसको हमने लेना है और फिर उसमें से लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना है। कितना अरसा चाहिए होता है एक अनआइडेंटिफाइड जो मर्डरर है कि अगर एक हम मिसाल लेते हैं कि 100 लोगों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, कितना अरसा लगता है पुलिस को पिन पॉइंट करते हुए कि हाँ ये शख्स ज़्यादा सस्पेक्ट है? जी, इसमें हमें जो अवेलेबल डाटा होता है वो तो हमें मिल जाता है। बेसिकली एनालिसिस में जो है ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है, और उसमें क्योंकि ये एक बड़ा हीनियस क्राइम है, किसी इसको हम इस तरह कैजुअली नहीं इस पे काम कर सकते। बड़ा इसमें तेज़ जो है ना हमने फ़िल्टर लगाना होता है, बड़े तरीके के साथ इसको हैंडल करना होता है। तो इसमें हमें 2 से 3 दिन जो है ना 4 दिन इस केस में हमें लग गए, इस डाटे को एनालिसिस करते हुए और असल कातिल तक पहुँचते हुए। फिर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्या ये वहाँ से फ़रार हो गया था या सुकून में था कि कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता, मैं पुलिस की पहुँच से दूर हूँ? इसका मोबाइल जो है ना वो डाटे के मुताबिक जो है ना वो भी जब इस अपनी वालदा से अलहदा होता है तो कुछ देर के बाद, आधे पौने घंटे बाद इसका मोबाइल भी बंद हो चुका है। उसके बाद उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी। तो ये कातिल जो है ना ये उसको मिला था मकवाना की जो चौकी है उस पर एक पुली है, एक स्टॉप है, वहाँ पे इसके साथ मुलाकात हुई थी। वहीं से जो है ना ये वहाँ पे इकट्ठे चले हैं और चल के कातिल इसको तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर आगे जो है ना 228 जहाँ पे इसकी डेड बॉडी है वहाँ पे लेके आए। वहाँ पे इनकी जो है ना वहाँ वो जब क्लश हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें जो है ना इसने कातिल ने अख्तर नामी कातिल ने उसको उसकी शॉल से जो है ना गला दबा के फंदा दे के कत्ल। क्या बताता है ये मुलजिम कि ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी जिसमें एक तल्ख कलामी, एक लड़ाई जो है वो इस हद तक बढ़ गई कि एक इंसानी जान लेना पड़ गई, उसको कत्ल जैसा बड़ा जुर्म जो है वो करना पड़ गया? क्या इसके पीछे कोई लंबी स्टोरी थी, बैकग्राउंड था इसका, या फिर इनकी जस्ट मुलाकात हुई, तल्ख कलामी हुई और उसने मर्डर कर दिया? नहीं, इसमें जो है ना एक बड़ा हमारा सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे जो रीज़न है कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, बड़ी एक बहुत मामूली सी रीज़न है जिसके पीछे उसने जो है ना उसका कत्ल कर दिया। बेसिकली ये 5-6 साल पहले इसकी दोस्ती हुई थी कातिल की इमरान के साथ। इमरान अंजलि जो है ना इसके भाई की कातिल के भाई की शादी पे फंक्शन पे गया था और वहीं पे इनकी दोस्ती हुई और वहाँ से वो चलती रही दोस्ती, तकरीबन 5-6 साल वो चली। और अभी जो है ना वो इमरान के पास मोबाइल था एक और इस कातिल के पास मोबाइल नहीं था। अभी वो उसको कहता था कि ये जो मोबाइल है ना आप और ले सकते हैं, मैं नहीं ले सकता, मेरे हालात ही ठीक, मुझे मोबाइल दे दें। इस बात पे इनकी पहले 1-2 दफ़ा जो है ना बहस भी हुई, ठीक है। और कत्ल वाले दिन भी बेसिकली वो उसको मोबाइल लेने के लिए
जो है ना उस पर ज़ोर दे रहा था और मोबाइल ही के ऊपर लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है, और मोबाइल के लड़ाई झगड़े पे उसने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद वो कुछ देर के लिए वहाँ से चला गया, फिर वापस आया और फिर उसकी पॉकेट से मोबाइल निकाल के साथ ले गया। अच्छा, क्या बताता है वो कि फिर डेड बॉडी उसने जो है खाली प्लॉट में उसको उसने डंप किया था, कैसे लेके गया? क्या वो अकेला था इस सारे काम में या उसका किसी ने साथ दिया? और अगर इसके साथ कोई और भी शामिल था तो क्या वो भी पाबंद सलासल है या अभी तक नहीं पुलिस के हाथ लग सका? नहीं जी, इसमें ये टोटल जो कत्ल है, टोटल जो क्राइम है, ये वारदात जो हुई है, ये कम्प्लीटली जो है ना इसने एक अख्तर नामी जो बंदा है कातिल है, इसका दोस्त था, उसी ने की है। और मोबाइल के अलावा जो है ना इसमें कोई और मोटिव नहीं है। और इसको वो वहाँ पे जहाँ से ये मिले हैं 2-2.5 किलोमीटर दूर जो है ना उस प्लॉट पे लेके आया जो है ना, और वहीं पे इसको जो है ना मर्डर कर दिया और वहीं पे उसकी बॉडी जो है ना फेंक दी। अब जबकि मुलजिम ज़ेर हिरासत है तो क्या पुलिस इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सॉलिड केस जो है वो इसके अगेंस्ट तैयार कर पाएगी कि एक कत्ल जैसा एक बड़ा जुर्म करने वाला दरिंदा जो है वो फिर इन्हीं गलियों बाज़ारों में कुछ अरसे बाद लोगों को नज़र ना आए? जी बिल्कुल, इस इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज़ कर रहे हैं एसपी साहब खुद, डीएसपी साहब खुद, और मैं खुद इसको देख रहा हूँ। और इसके आईओ जो है ना बड़ी मेहनत के साथ हमने प्रॉपर इसका जो है ना तमाम एविडेंसेस जो है ना वो इकट्ठे किए हैं, और टेक्निकली हर चीज़ को साथ लेके हम जो है ना प्रॉपर इसका चालान तैयार करेंगे। किसी किस्म का इसमें पुलिस की तरफ से हमारी 100% इस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि किसी किस्म की कोई छोटी सी भी जो है ना इसमें सुकम ना रहे, और एक प्रॉपर चालान जो है ना अदालत में सबमिट हो ताकि कातिल जो है ना अपने अंजाम को पहुँचे। अच्छा अली भाई, आप जिस थाने के इंचार्ज हैं वो इस डिवीज़न का सबसे बड़ा थाना पुलिस स्टेशन है। इसमें दोनों तरह की आबादी है, शहरी आबादी भी है, देही इलाके भी ज़्यादा हैं। किस आबादी का जो है वो नेचर ऑफ क्राइम किस तरह का होता है? देही इलाकों से आपको किस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं? शहरी इलाकों में जो है वारदात वो किस तरह की ज़्यादा होती है? जी वाकई थाना सदर जो है ना उसमें रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है, हर किस्म का क्राइम जो है ना वो इसमें कोई इलाका जो है ना स्पेसिफिक क्राइम के लिहाज से नहीं है। रॉबरीज़ भी रूरल में भी हो जाती हैं, अर्बन एरिया में भी हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी वारदातें, चोरी वगैरह सारा जो है ना, मर्डर, अटैम्प्ट मर्डर, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, सब जो है ना मिला जुला हर जगह पे जो है ना ये क्राइम। कितना मुश्किल होता है अली भाई, एक पुलिस स्टेशन है जो वो सारा शहरी आबादी में होता है तो वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम्स, और एक एसएचओ जो है वो अपनी सीट पे बैठा हुआ है और एट द सेम टाइम उसको पानी लगाने पे, दीवार बनाने पे, ज़ात बरादरी पे, घरेलू रंजिश वाली लड़ाइयाँ भी आ रही हैं, उसको स्ट्रीट क्रिमिनल्स वाली रिपोर्ट्स का भी सामना है। तो कितना हेक्टिक होता है ये एसएचओ के लिए दोनों तरह के क्राइम्स को पैरेलल लेके चलना? जी बिल्कुल, ये एक हेक्टिक काम है जो है ना, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है ना उसके ऊपर फोकस जो है ना वो बिल्कुल हटता है जब क्राइम अगेंस्ट पर्सन, जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मामूली जो है ना, या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं इनकी वजह से क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो होती हैं उनसे तवज्जो ज़रूर हटती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की करते हैं हम लोग जो है ना इस चीज़ को जो है ना बराबर लेके चलें, लोगों की जो है ना दादरसी भी हो, और प्लस क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो करने वाले मुजरमान हैं उनके पीछे भी हम जो है ना बिल्कुल प्रॉपरली जाते हैं, हम पकड़ते भी हैं। ये मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि ये बहुत बारीक सी थिन सी लाइन है इसमें कि एक तरफ आप रॉबर्स और स्ट्रीट क्रिमिनल्स से फ़ाइट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप एक सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे होते हैं, घरेलू झगड़ों पे आप समझा रहे होते हैं। देही इलाकों के लोगों के मसाइल भी इसी तरह के होते हैं कि इसने दीवार ऊंची कर दी, इसने नीची कर दी, और एट द सेम टाइम एक ही सीट पे बैठ के आपको 24 घंटे के अंदर मुख्तलिफ तरह की जो है वो माइंड सेट का सामना होता है। क्या पैगाम देंगे थाना सदर के लोगों को? मौसम है, सर्दियाँ हैं, धुंध का इलाका है, धुंध का मौसम है, तो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के जराइम हैं। क्या पैगाम देंगे लोगों को कि पुलिस और अवाम मिलकर जो है वो जराइम की रोकथाम में अपना किरदार अदा कर सकें? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज़ जो है ना वो बनी हुई हैं, छोटी छोटी, कुछ डेवलप्ड हैं, कुछ अनडेवलप्ड हैं सारी। मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल और इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पे, कुछ ऐसे लोग हैं जो पुलिस को रिपोर्ट किए या पुलिस में किए बगैर वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी निशानदेही करना उनका फ़र्ज़ है और कार्रवाई करना हमारा फ़र्ज़ है। और अर्बन एरियाज़ में मेरी रिक्वेस्ट है जो है ना, अपना रूरल एरियाज़ में मेरी अपने लोगों से रिक्वेस्ट है
कि जिस तरह आप सर्दी का मौसम है तो पुलिस को जो है ना असिस्ट करें, ठीकरी पैरा में जो है ना ठीकरी पैरा का इंतज़ाम करें, ठीक है। कुछ मशकूक अगर कोई एक्टिविटीज़ कहीं हो रही है तो पुलिस को रिपोर्ट करें। जो चीज़ हमें रिपोर्ट होती है उसका हम मुश्किल हो हमारे लिए, आसानी हो, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हैं। नाजरीन, SHO थाना सदर गुराया हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे पुलिस ने जो है वो अपनी प्रोफेशनल जो है वो तरीक़ाकार को बरूए कार लाते हुए न सिर्फ एक ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया बल्कि मुलजिम को हिरासत में भी ले लिया। और साथ ही इनका यह पैगाम था लोगों के लिए कि आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म, ज़्यादती या किसी भी परेशानी की सूरत में पुलिस पे ट्रस्ट कीजिए। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए है, पुलिस हमा वक्त आपके लिए तैयार है। सिर्फ ट्रस्ट कीजिए, पुलिस का साथ दीजिए ताकि पुलिस और अवाम मिलकर जराइम पर काबू पा सके। नाज़रीन, मोहम्मद इमरान उर्फ अंजलि के दीगर अजीज़ो अकरबा रिश्तेदार जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि मोहम्मद इमरान उर्फ अंजलि ऐसा कब से था, क्यों था, उसे ये शौक़ किस तरह से हुआ, घर वाले जो रिश्तेदार हैं वो इसको किस नज़र से देखते हैं कि वो ऐसी आदत का शिकार हुआ और फिर एक भयानक अंजाम को पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम भाई, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम महबूब अली है। महबूब भाई, बताइएगा कि आप उसके रिश्तेदार भी हैं कत्ल हो जाने वाले मोहम्मद इमरान के। मोहम्मद इमरान बुनियादी तौर पे कैसी शख्सियत का मालिक था, किन लोगों में उसका उठना बैठना था और कब से जो है वो ख्वाजा सराओं का रूप धारे हुए था? ये तकरीबन 3-4 साल से उनके साथ थे और उसके बाद इंसान भी अच्छा था यार, किसी के साथ उसका कोई गलत मिजाज ही नहीं थे, किसी के साथ ना नजायज़ करने से मिलना। हम लोगों के साथ छुपता था यार, सलाम देने से देखता था कोई आ रहा है, अपना आ रहा था, अपनों से छुपता था। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि हम ऐसे केसेस में अक्सर देखते हैं कि एक बच्चा जो कुदरती तौर पे ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा नहीं है, बाद में उसने अपनी सोसाइटी को, दोस्तों को या इर्द गिर्द किसी को देखा और उसमें शौक़ पैदा हुआ कि मैं ये वाला काम करूँगा। अच्छा, क्या कौन से ऐसे लोग थे, किन को देख के उसने अपने आप का गेटअप, क्या आपको, घर वालों को, उसकी फैमिली को उन लोगों का, उन जगहों का पता है जहाँ पे जाके उसने अपना ये बहरूप जो है वो बदलना शुरू किया? ये देखने से ही उसको शौक़ पैदा हो गया था, देखते देखते ये उसने काम शुरू कर दिया। यानी कि उसके बाद 10-20 रुपए यानी कि हर फी घर से मांगना शुरू कर दिया। ऐसे करके उसने गुजारा करना शुरू कर दिया था। अच्छा, जो इलाके में रहते हैं लोग या जो ख़ानदान वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बच्चे को जैसे जैसे बड़ा होता देखते हैं। बचपन में जब प्राइमरी लेवल तक बच्चा 8-10 साल का होता है तब उसकी आदतें और होती हैं। हाई हिस्से तक जब वो 15-16 साल का होता है और होता है, जब फिर उससे बड़ा होता है तो और होता है। आपको कब ये महसूस हुआ कि मोहम्मद इमरान जो है वो अब नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, नॉर्मल इंसानों की तरह उसकी जो है वो हरकत व सकनात नहीं है, वो है तो मर्द लेकिन उसको ख्वाजा सराओं का शौक़ है, ये आपको कब फील होना शुरू हुआ? यही 3-4 सालों से, इससे ज़्यादा नहीं है, इतना टाइम हुआ। लेकिन उसने ऐसा कोई उसमें हम लोगों ने काम नहीं देखा, गलत कोई काम नहीं देखा यार। फिर तो घर वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना, देखनी चाहिए कि ऐसे कौन लोग थे जो हमारा बच्चा जो है वो पहले ऐसा नहीं था, वो नॉर्मल बच्चों की तरह रिश्तेदारों से मिलता, हंसता, खेलता है और एकदम से उसकी तबीयत में आ जाता है कि वो आम एक मर्द होते हुए जो है उसको मर्द अच्छे नहीं लगते और वो ख्वाजा सराओं के साथ जाके मिल जाता है। आपको नहीं लगता कि फैमिलियों को, तमाम लोगों को, हमारा नुकसान हो गया, हमारा बच्चा चला गया, लेकिन तमाम लोगों को जो है वो इस पर सोचना चाहिए और अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए? पहले नंबर पे उससे बेचारे से काम नहीं होता था, छोटे छोटे इतने इतने उसके बाजू थे। और दूसरे नंबर पे उसके ये जो हड्डियां थी ना, ये यहाँ तक ये पदेशी था, ऐसा मामला था, काम उस बेचारे से नहीं होता था। वो कैसे न कैसे उसने गुजारा तो करना था, भले रिश्तेदार जितना भी साथ दें, लेकिन अपनी मेहनत मजदूरी करने के बगैर गुजारा नहीं इंसान का होता। आप कहते हैं कि उसकी जो बॉडी है, जो उसका जिस्म जो है वो बिल्कुल जो परफेक्ट नॉर्मल मर्दों की तरह होता है, वो शुरू से ही नहीं था? नहीं, वो शुरू से नहीं था। ये शुरू से उसके बेचारे के इतने इतने बाजू थे, ये उसकी यानी कि ये जो जोड़ आता है ना, ये इसका इतना आता है, इतना पीछे वाला जोड़ है, इतने इतने उसके बाजू टोटल थे। और जिसने भी किया, लेकिन ये नजायज़ किया, इसने जुल्म किया है।
अच्छा ये बताएं कि जब पता चल गया कि अब मोहम्मद इमरान जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसको किसी ने कत्ल कर दिया है, तो जो बाकी ख़ानदान है, पूरा जो कबीला है, क्या रिएक्शन होता है उनका? क्या तवक्को रखते हैं आपके जो कातिल है उसको कैसी सज़ा होनी चाहिए? सख्त कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने किया कत्ल जिसकी माफ़ी अल्लाह की बारगाह में भी नहीं दी जाती। कड़ी से कड़ी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी तो ये दुआ है, क्योंकि वो उस गरीब के साथ, वो अल्लाह के एक फ़कीर बंदा था जिसके साथ जुल्म हुआ है, और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं किसने कैसे करके उसको मारा गरीब को, वो हमने तो देखा नहीं है। अच्छा ये बताएं कि पुलिस इस मामले में जो है वो ताउन कर रही है, पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है उससे आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ भरपूर साथ दे रहे हैं, हम इनके शुक्रगुजार हैं। बाकी अल्लाह पाक इनको दे और हिम्मत देवे, इनको कामयाबी अल्लाह पाक इनको, कि हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मोहम्मद इमरान उर्फ अंजलि बेदर्दी से कत्ल किया गया एक खून नाहक पूरी इंसानियत का खून है, और तमाम रिश्तेदार और अजीज जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मुल्ज़िम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक ख्वाजा असरा का ब्लाइंड मर्डर न सिर्फ पुलिस ने ट्रेस किया बल्कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया। ख्वाजा असरा का कातिल उसका अपना दोस्त निकला। यहाँ ये भी पैगाम है कि अपनी दोस्ती के रिश्ते में मोहतात रहिए, क्योंकि टीम मुजरिम कौन हमेशा से ये कहती आई है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। टीम मुजरिम कौन के साथ शोएब अल्ताफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।